جب بھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں عظما چوہدری۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چین کی دوسری عالمی جنگ میں فتح کی 80ویں یادگاری تقریب، بیجنگ کے تیان آن من اسکوائر پر شاندار پریڈ کا انعقاد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دنیا کی سب سے بڑی فوجی پریڈ میں شرکت۔ تیان آن من اسکوائر پہنچنے پر چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم اور عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ روس، ایران، آذربائیجان، بیلاروس سمیت 26 ملکوں کے سربراہوں کی شرکت۔ A total of 45 formations and echelons participate in the parade, and most of the weapons and equipment are shown to the public for the first time. It not only embodies the continuation of the heroic armed forces during the war of resistance, but also demonstrates the new look of the people's military in the new era with enhanced political awareness and its new structure and force composition. بیجنگ کے تیان آن مین اسکوائر پر شاندار فوجی پریڈ، چین کا بھرپور عسکری طاقت کا مظاہرہ، فضائیہ، بحریہ اور بری فوج سے وابستہ مرد و خواتین فوجی دستوں نے حصہ لیا۔ چین کی پروقار تقریب ٹیکنالوجی، جدت، معیشت اور دفاعی میدان میں ترقی اور کامیابیوں کی عکاس۔ جنگ یا امن میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چینی عوام امن کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری ترقی اور خوشحالی کا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ انصاف اور مساوات پر مبنی عالمی نظام چاہتے ہیں، کبھی توسیع پسندانہ راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا پریڈ سے خطاب۔ بیجنگ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ چینی کاروباری اداروں کے چیف ایگزیکٹوز کی ملاقاتیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور صنعتی تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ پاکستان چینی کاروباری شخصیات کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی اور صنعتی شراکت داری کو آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بیجنگ میں آنزن ہسپتال کا دورہ، ہسپتال میں دستیاب سہولیات کا معائنہ۔ وزیر اعظم کی مؤثر نظام، جدید ٹیکنالوجی، بہترین خدمات پر ہسپتال انتظامیہ کی تعریف۔ جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد اور دیگر ہسپتالوں میں آنزن ہسپتال کی طرز پر انفراسٹرکچر قائم کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں زیر تعمیر ہسپتالوں میں چین کی طرز پر معیاری سہولیات کو ترجیح دی جائے، وزیر اعظم۔ صدر مملکت کی فتح کی 80ویں سالگرہ پر چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ یہ دن چین کے عوام کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یوم فتح چین کے عالمی امن میں تاریخی کردار کا اعتراف ہے۔
پاکستان اور چین کے تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور ترقی کے مشترکہ ویژن پر قائم ہیں: صدر آصف علی زرداری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ سے چیئرمین این ڈی ایم اے سے ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم کو سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے راوی، چناب اور ستلج میں بڑھتی طغیانی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مکمل تعاون، حفاظتی اقدامات اور امدادی کارروائیاں تیز کی جائیں، عوام کو بڑھتی ہوئی طغیانی کے حوالے سے پیشگی آگاہ رکھا جائے: وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری کا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے رابطہ، گورنر پنجاب کی صوبے میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ملک کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے، عوام کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا: صدر آصف علی زرداری۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حسرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طور پر منانے کے لیے تیاریاں عروج پر، عمارتیں برقی کمکموں سے روشن، عاشقان جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی عقیدت کے ساتھ منانے کے لیے پرجوش، درود و سلام کی روح پرور محافل۔ دریائے چناب میں شدید سیلاب کا الرٹ جاری، دریائے چناب کا سیلابی ریلا 8 ستمبر کے صبح 7 بجے 3,30,000 کیوسکس بہاؤ کے ساتھ تریمو ہیڈ ورکس پہنچے گا۔ قادر آباد پر بہاؤ 5,50,000 کیوسکس تک پہنچنے کی پیشگوئی، مرالا ہیڈ ورکس پر بہاؤ 5,48,237 ریکارڈ۔ این ڈی ایم اے کی خانقی، قادر آباد، تریمو، پنجنت اور گڈو کے قریب آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال، مختلف واقعات میں اب تک 43 افراد جاں بحق، 33,63,000 لوگ متاثر، سیلاب میں پھنسے 12,92,000 لوگ محفوظ مقامات پر منتقل، متاثرہ اضلاع میں 405 ریلیف، 425 میڈیکل کیمپس قائم، تقریباً 8 لاکھ جانور محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی ہے، ترجمان پی ڈی ایم میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، حکام کی ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا امداد اور ریلیف سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار، وزیر اعلیٰ کا میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ، مریضوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کیمپس میں مقیم سیلاب متاثرین سے بات چیت، بچوں سے خصوصی شفقت، تحائف تقسیم کیے۔ ملتان میں دریائے چناب کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، ہیڈ تریمو سے آنے والا سیلابی ریلا ملتان کی حدود میں داخل، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، لاکھوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل، ضرورت پڑنے پر ہیڈ محمد والا کے حفاظتی بند کو توڑنے کے لیے تمام انتظامات مکمل، انتظامیہ نے ریلیف کی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ پاک فوج کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھرپور ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری، مختلف علاقوں میں سیلاب میں پھنسے لوگوں کے انخلاء کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جھنگ، چنیوٹ، اکاڑا، ساہیوال، تلمبا، میاں چنو اور اقبال نگر میں بھی امدادی سرگرمیاں جاری، سینکڑوں افراد اور مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل، متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپ قائم۔
मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। मुश्किल वक्त में सियासत नहीं, खिदमत का जज्बा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब मुतासरीन की हर तरह से मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दौरे चीन के दौरान भी रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सैलाबी सूरत हाल में पीटीवी न्यूज का मौसर किरदार। पीटीवी न्यूज कौमी जिम्मेदारी निभाते हुए फ्रंट लाइन कवरेज दे रहा है। मुल्क भर से नुमाइंदे दरियाओं की सैलाबी सूरत हाल से बाखबर रख रहे हैं। बराह रास्त लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट फराहम की जा रही हैं। मुतासरा आवाम की आवाज मौसर अंदाज में हुकूमत तक पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस और इंतजामिया की सरगर्मियों को उजागर किया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में जिम्मेदाराना सहाफत के साथ पीटीवी न्यूज पेश। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलोचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का कोयटा धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमले काबिल मुसम्मत हैं। धमाके में मुलविस दहशतगर्दों का जल्द सुराग लगाकर करार वाकई सजा दी जाए। दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कोयटा खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई, 38 जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस की शाहवानी स्टेडियम धमाके पर ब्रीफिंग। सानहे के शोहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सूबे में 12 रबीउल अव्वल के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाए। मीर सरफराज बुगटी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर अफगानिस्तान में हालिया तबाहकुन जल्जले से मुतासर अफराद के लिए 105 टन इमदादी सामान रवाना। इमदादी सामान में राशन बैग्स, खैमे, कंबल, चटाइयाँ और जरूरी अद्वियात शामिल। इमदादी सामान तुरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर, सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, रुकने सिंध असम्बली सुहेल अनवर सयाल की कराची में मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, मुतासरा आवाम के मसाइल और उनके हल के लिए जारी इकदाम पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद अहमद शाह की अयादत की। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कारोबारी बिरादरी का हुकूमती मुआशी इस्लाहात पर मुसलसल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1226 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह 1,52,201 पर बंद। गुज़श्ता 4 कारोबारी दिनों के दौरान स्टॉक मार्केट में 4,857 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। तनाज़ा कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का ख्वाब हरगिज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आलमी बिरादरी मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम पर भारत का मुहासबा करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गाजा में सयूनी फोर्सेस की इंसानियत सोज कार्रवाइयां। मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी में 33 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। फाका कशी से मजीद 6 अफराद का इंतकाल। भूख से मरने वालों की तादाद 367 हो गई। हलाक होने वालों में 131 बच्चे भी शामिल। इजरायली फोर्सेस का गाजा सिटी का घेराव। घरों, खैमा बस्तियों समेत रहायशी इलाकों पर हमले। शारजा में 3 मुल्की T20 सीरीज। 5वें मैच में कल पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात मध्य मुकाबले। 3-3 मैच खेलने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 4-4 पॉइंट्स। मुत्तहदा अरब अमारात की टीम अब तक कोई मैच न जीत पाई। हरारे में पहला T20 क्रिकेट मैच श्रीलंका की जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जिम्बाब्वे के 7 विकेटों पर 175 रन। श्रीलंका ने हदफ 19.1 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। चमेरा की 3 विकेटें, पाथम के 55 रन। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
اور نیو یارک میں یو ایس اوپن ٹینس، سربیا کے نوواک جوکووچ اور اسپین کے کارلس الکراز سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ کوارٹر فائنلز میں امریکہ کے ٹیلر فرٹز اور جمہوریہ چیک کے جیری رہیکا کو شکست۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وہ جو سرحدوں کے پار رہ کر بھی دل کے قریب ہیں۔ نیفٹیک جو کہ پاکستان میں ہنر دینے کا وفاقی ادارہ ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے 5000 بچوں کو ہنر مندی کے کورسز کروائے گا انشاءاللہ 5000۔ وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل انیشیٹو کے تحت اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے اشتراک سے نیفٹیک کر رہا ہے ملک کے 16 بڑے شہروں میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایمیزون ورچوئل اسسٹنٹ، ای کامرس، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، سرٹیفکیٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الیکٹریشین اور ویلڈنگ کے شعبہ جات میں 3 سے 6 ماہ کے مفت کورسز کا آغاز۔ یہ تربیت صرف تعلیم نہیں، ایک وعدے کی تکمیل ہے۔ وہ جو دور رہ کر بھی پاس ہیں، ہمارے لیے خاص ہیں۔ داخلے کی آخری تاریخ 15 ستمبر 2025۔ عمر کی حد 18 سے 40 سال۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، حکومت پاکستان۔ ہمیں امن کے درست ہر وقت بر وقت۔ چین کے عوام کی دوسری عالمی جنگ میں فتح کی 80ویں سالگرہ کی شاندار تقریب بیجنگ میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت 26 ملکوں کی رہنما صدر شی جن پنگ کی خصوصی دعوت پر تقریب میں شریک ہوئے۔ تفصیل بتا رہی ہیں مریم ملک۔ چین کے عوام کی مزاحمتی جنگ میں کامیابی کی 80ویں سالگرہ پر بیجنگ کے تھیانانمن اسکوائر میں پروقار تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، آذربائیجان کے صدر الہام ایلیوف سمیت 26 ملکوں کی قیادت اس شاندار تقریب میں شریک ہوئی۔ میزبان صدر شی جن پنگ نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ وکٹری پریڈ میں ایشیا کے مضبوط ترین لیڈرز ایک ساتھ کھڑے تھے۔ چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف پریڈ وینیو پر ایک ساتھ داخل ہوئے۔ اس اہم تقریب میں بھارتی وزیر اعظم کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ایشیا کے طاقتور ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی پاکستان کی خطے میں بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ رواں سال اس تقریب کا عنوان تاریخ کو یاد رکھنا، شہداء کی یاد کو تازہ کرنا، امن کی قدر اور مستقبل کی تعمیر کرنا تھا۔ چینی حکومت کی دعوت پر مختلف ملکوں کے نائب وزرائے اعظم، پارلیمانی وفود، عالمی تنظیموں کے سربراہوں کے ساتھ بیجنگ میں تعینات غیر ملکی سفارتکار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس تقریب کی اہم بات شاندار فوجی پریڈ تھی۔ 50,000 سے زائد افراد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ چین کے صدر اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ اپنے خطاب میں صدر شی جن پنگ نے فسطائیت کے خلاف جنگ میں جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امن کا تحفظ کرنے کے ساتھ بہتر مستقبل تشکیل دینا ہے۔ انہوں نے تقریب میں شریک غیر ملکی رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ مساوات، پرامن، بقائے باہمی اور تعاون کے ذریعے ہی مشترکہ سلامتی کے تحفظ کے ساتھ تاریخ کا المیہ دہرانے سے بچ سکتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور جدت کے ذریعے چین کو طاقتور بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ تھیانانمن اسکوائر پر ہونے والی پریڈ میں فوجی دستوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ تقریب چین کی ٹیکنالوجی، جدت، معیشت اور دفاعی میدان میں ترقی اور کامیابیوں کی عکاس تھی۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیجنگ میں آنجن اسپتال کا دورہ کیا اور دستیاب سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال میں مؤثر نظام، جدید ٹیکنالوجی اور بہترین خدمات کی فراہمی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کو اسلام آباد میں زیر تعمیر منصوبوں اور وزارت صحت کو اسلام آباد میں زیر تعمیر جناح میڈیکل کمپلیکس اور دیگر ہسپتالوں میں آنزن ہسپتال کی طرز پر سادہ،
मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर तामीर हस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। दौरे में वज़ीर आज़म को हस्पताल में दस्तयाब सेहत की सहूलियात और हस्पताल के मौसर इंतजामात के लिए मौजूद रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात का मुआयना कराया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक दूसरे के साथ सनती ताउन पाकिस्तान और चीन की इक्तिसादी तरक्की का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान चीनी कारोबारी शख्सियात को सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी और सनती शराकतदारी को आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। बीजिंग में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए आला चीनी कारोबारी इदारों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातों में पाकिस्तान में टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, कानकनी और मादनियात, सड़क और डिजिटल राब्ते, ई कॉमर्स और खलाई टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इस्लाहाती इक़दाम का जिक्र किया। इन इक़दाम में सरमायाकारों के लिए टैक्स मराद, चीनी शहरियों के लिए आसान वीज़ा पॉलिसी, सफ़र और कारोबार में आसानी के लिए बड़े हवाई अड्डों पर मखसूस बोत का क़याम शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल सरमायाकारी को तेज़ करने और B2B ताउन को मजबूत करने के लिए अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। उन्होंने चीनी इदारों को दावत दी कि वो सनतों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन में मुंतकिल करने के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में चीनी सरमायाकारी में इजाफा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा करने में मुआवन साबित होगा। इससे इलाकाई तरक्की, जिद्दत और मुश्तरका खुशहाली के विजन को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन किया और दरियाओं में बढ़ती हुई तुग़यानी के पेश नज़र रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मरबूत ताउन, हिफाजती इक़दाम और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम को रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी के हवाले से पेशगी आगाह किया जाए। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर से सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिफरे दरिया और बारिशें खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। गवर्नर पंजाब ने सूबे में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से सदर मुमलिकत को बताया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में हिलाल अहमर के इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। हिलाल अहमर की खिदमात का दायरा सूबे भर में फैला दिया है। सुबह पंजाब के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल है, जबकि मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और बहाली के लिए जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। दरियाए रावी, चेनाब और सतलुज में 5 सितंबर तक पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है और दरियाओं के मुख्तलिफ मुकामात पर दरमियाने से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल कायम है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए चेनाब में 24 घंटे के दौरान मराला, खानकी और कादराबाद हेडवर्क्स पर पानी के बहाव में शदीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया और मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से बढ़कर 5,20,000, खानकी के मुकाम पर 1,20,000 से बढ़ के 5,32,000 और कादराबाद हेडवर्क्स पर 1,35,000 से बढ़ के 3,99,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी में बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,14,000 और सिथानई हेडवर्क्स पर 1,60,000 क्यूसिक होने के बायस इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। रावी में जस्सर और शादरा के मुकाम पर पानी के बहाव में एक बार फिर इजाफा हुआ है और 24 घंटों में जस्सर के मुकाम पर पानी का बहाव 53,000 से बढ़कर 89,000 क्यूसिक, जबकि शादरा के मुकाम पर 48,000 से बढ़कर 57,000 क्यूसिक हो गया है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और पानी का बहाव 3,11,000, जबकि हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 1,28,000 क्यूसिक के साथ ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दरियाए चेनाब और दरियाए रावी के पानी का सैलाबी रैला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है और इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तीनों दरियाओं में सैलाब से 3300 से जायद मोजाजात और मजमूई तौर पर 33 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। सूबे भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज और सिविल इदारे रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मी
سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شدید متاثرہ اضلاع میں 405 ریلیف اور 425 میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ سیلاب میں پھنسے 12,92,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ حالیہ سیلاب سے 43 شہری بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ متاثرہ اضلاع سے 8 لاکھ سے زائد مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے اور 385 ویٹنری کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہیڈ تریمو سے آنے والا سیلابی ریلا گزشتہ شام ملتان کی حدود میں داخل ہوا، جس کے بعد کئی نشیبی علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے ریلیف کی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ اس وقت ملتان میں دریائے چناب سے 5 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے، جبکہ ہیڈ محمد والا کی گنجائش 8.5 لاکھ کیوسک ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق فاضل شاہ، بند بوسن اور گرے والا کے مقامات پر پانی کی سطح کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اکبر فلنٹ بند پر پانی کی گیج 411 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس کی نازک سطح 417 فٹ ہے۔ سرابی ریلے کے 22 دریا کے نشیبی اور بیٹ کے 138 مواضعات متاثر ہوئے ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 3 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور ضلع انتظامیہ کے متاثرہ علاقوں کے مسلسل دورے جاری ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے ریلیف کیمپوں میں متاثرین سے ملاقات کی اور دستیاب سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈائریا ہے یا انفیکشن ہے وہ بھی میں نے ساری میڈیسنز دیکھی اور جتنی ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی میں دیکھ چکا ہوں کہ آج کتنے لوگ ٹریٹ ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے ہماری ٹیموں کو جو اس وقت مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ملتان ڈویژن میں 90 سے زائد فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں متاثرین کو رہائش، کھانے اور ادویات کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک 5.5 لاکھ افراد کو سیلابی علاقوں سے ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ 5 لاکھ سے زائد مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے خواتین اور بچوں کے لیے علیحدہ پورٹیبل واش رومز بھی بنائے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریسکیو ادارے الرٹ پر ہیں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملتان میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہیڈ محمد والا کا دورہ کیا۔ وہ قاسم بیلا ریلیف کیمپ بھی گئیں اور متاثرین سے ملاقات کی۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہیڈ محمد والا بریچنگ پوائنٹ پر سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے خاندان کو کنارے سے خود ریسکیو کیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں مدد کے لیے پہنچنے پر بزرگ خاتون نے وزیر اعلیٰ کو دعائیں دیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ سیلاب میں پھنسے اپنے بہن بھائیوں کا دکھ درد بانٹنے آئی ہیں۔ وہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی تمام مشکلات کا ازالہ کریں گی۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے جوتا بھی پہنایا۔ اس موقع پر پی ڈی ایم میں اور ضلعی حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے جدید ڈیزاسٹر وین سے سیلابی صورتحال کا لائیو مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیگر متاثرہ اضلاع میں بھی ڈیزاسٹر وینز فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ ملتان میں سیلابی ریلوں سے 138 موضع جات کے 3.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ شدید متاثرین کی بحالی کے لیے 25 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہزاروں افراد کو کھانے اور ادویات سمیت تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فلڈ ریلیف کیمپوں میں مچھر مار اور جراثیم کش ادویات کے سپرے کے بارے میں دریافت کیا اور ہدایت کی کہ متاثرین کو مختلف امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے بروقت انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ سب ڈسٹرکٹس میں یہ میکانزم لے کے اس کو ایکسٹینڈ میم کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس یہ جو موبائل وینز ہیں جس کے اندر یہ سارا سسٹم سیٹ اپ ہوا ہے میم، تینوں ریورز کا جس جگہ پہ اس وقت مین پیک چل رہی ہے نا میم، اس کو یہ ٹوٹل فالو کر کے اور اس کی انوینٹیشن کو اور ریلیونٹ ٹینٹیکلز کو ساتھ ساتھ ہم اس کے تھرو میم الرٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ریلیف کیمپ کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ شہریوں کو آٹے اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول میں رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ متاثرہ شخص نے تشکر کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ کو دعائیں دیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قاسم بیلا ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا اور وہاں خوراک، طبی امداد سمیت بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خاندانوں سے مسائل دریافت کیے، ان کے فوری حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ? ਬਸਤੀ ਲੰਗੜਿਆਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?
खाना पीना मिलता पे वो सैलाब से मुतासरा खवातीन और बच्चों में घुल मिल गयीं और उनके घरों की जल्द बहाली के लिए इकदामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खवातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ दिए, जबकि बच्चों में चॉकलेट और बिस्किट तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज फ्लड कैंप में मुकीम नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गयी, उनसे बातचीत की। उन्होंने कैंप में सफाई और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे मुल्तान के दौरान दुकानें बंद करवाने पर बरहमी का इजहार किया और रिपोर्ट तलब करते हुए वाज़ेह किया कि उनके दौरे से शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं होना चाहिए। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का है कहना कि सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे नईमुल असद। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में ओवर कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और सैफरान के वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि वजीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद जारी रखे हुए हैं। हमारी पूरी टीम वही मौजूद रहे और अपना इनपुट मुख्तलिफ इलाकों में देते रहे और वही बिजली की रेस्टोरेशन जो कई महीनों तक मुमकिन नहीं था उसको मुमकिन बनाकर दिखा दिया इस मुश्किल की घड़ी में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो लोग शहीद हुए उन सब के लिए 20-20 लाख का ऐलान किया और उसके चेक दिए जा रहा है और इसको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उनको सूबाई हुकूमत के साथ साथ जो उन्होंने दिए उनकी जिम्मेदारी थी। 100% कंपनसेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी हर एक बंदे को, उनके वर्सा को, जो शुहदा है उनके वर्सा को मिलेगी, जख्मियों की भी मदद होगी। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि पीटीआई ने हर कौमी मामले पर सियासत की। पीटीआई का असल चेहरा अवाम के सामने बेनिकाब हो रहा है। कल जब असम्बली में फ्लड पर डिबेट शुरू हुई तो फ्लड के डिबेट शुरू होने पर उन्होंने फिर वॉकआउट किया, असम्बली से भाग गए, उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। जब कौम मुश्किल में या कोई इस तरह नेशनल इवेंट आता है तो इसी पर ये भाग जाते हैं। इस मौके पर 4 सदस्य ताल्लुक रखने वाले सेंटर बहरमन तंगी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करते हुए पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। नईमुल असद, पीटीवी न्यूज़, इस्लामाबाद। गुड्डू बैराज पर सैलाब की क्या सूरत हाल है, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिश्ता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। वेलकम बैक। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सक्खर और कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी से कई देहात सेरेआब आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज अली डाहरी। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और इस वक्त गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,69,000 क्यूसिक जबकि अखराज 3,54,000 क्यूसिक है। आइंदा 24 घंटों में बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बैराज से गुजरने का इम्कान है, जबकि सक्खर बैराज से कोटड़ी बैराज के दरमियान निचले दर्जे का सैलाब है और तमाम कच्चे का इलाका जेर आब है। कंदकोट, कश्मोर, शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर और सेवन के इलाकों में दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर पानी में इजाफा हो रहा है, जहाँ से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। एनडीएमए, पीडीएमए और सिंध हुकूमत की तरफ से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां की गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स कायम किए गए हैं। महकमा आबपाशी और दूसरे इदारे बंदों की निगरानी और कमजोर पुश्तों की मरम्मत कर रहे हैं। रुकन सिंध असेंबली मीर महबूब अली बजारानी ने तोड़ी बंद का दौरा किया और सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली। पाक फौज जिले इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इकदाम कर रही है। जनरल ऑफिसर कमांड
नवाकिल मेजर जनरल शहरियार अहमद ने गुड्डू बैराज कश्मोर का दौरा किया। जिले इंतजामिया और इरिगेशन हुकाम की तरफ से उन्हें सैलाबी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सैलाबी पानी से सेवन के करीब 40 से ज्यादा गांव पानी की जद में आ गए। लोग अपने मवेशियों, कीमती सामान समेत पक्के के इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं। शिराज अली ताहिरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुड्डू बैराज, कश्मोर। अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों और हुकूमती शख्सियात की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे जारी हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे वकास भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। अहम शख्सियात की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरों का मकसद वहाँ जारी इमदादी कार्रवाइयों को जायजा लेना और मुतासरीन से इज़हार यकजहती करना है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान लाहौर के इलाके थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी गए और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। गवर्नर सैलाबी रेले में बच्चों की शादी के लिए इकट्ठा किए जाने वाला जहेज बह जाने वाली फैमिली के पास भी गए और बच्चियों की शादी के लिए जहेज की फराहमी की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ सैलाब ज़दगान की बहाली पर मरकूज हैं। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान सैलाब से मुतासरा इलाकों के जायजा लेने ननकाना साहब गए। उन्होंने दरियाई रावी के सैलाब से मुतासर होने वाले देहात, नवाकोट, बच्चों की पार और जरेशपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन इलाकों में लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप्स में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। गवर्नर पंजाब ने सैलाब मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम करने की तकरीब में भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में इन दिनों तारीख का बदतरीन सैलाब आया हुआ है। हमें अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर एक कौम बनकर इस आफत का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी जल्द पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सूबाई वजीर तामीरात और मुवासलात मलिक ज़ुएब अहमद भर्थ ने बाबू साबू से मुलक्का शाहरा और कसूर का दौरा किया और कसूर में मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहाली के काम का जायजा लिया। पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और फ्लड रिलीफ कैंपों में सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला की हदायत पे सूबे भर में सैलाब मुतासरीन को खुश्क राशन फराहमी का भी आगाज कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वजीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नजीर को क्लिनिक ऑन बोर्ड शुरू करने का टास्क दे दिया। क्लिनिक ऑन बोर्ड प्रोजेक्ट अगले 24 से 48 घंटों में ऑपरेशनल होगा। वजीर आला पंजाब की हदायत पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने शादरा फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और 216 मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर जिला इंतजामिया लाहौर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक है और क्राइम फ्लड रिलीफ कैंपों में मौजूद मुतासरीन को खाना, साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और दीगर जरूरियात जिंदगी फराहम की जा रही हैं। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। पाक फौज के जवान मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब में फंसे लोगों का इनखिला यकीनी बना रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान। पंजाब में सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों खोलरा पॉइंट, हसोवाली, बदवाना, जंग और जिला चनियोट में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज के जवानों ने किश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर लिए हैं और कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। इन इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं जहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खिदमत इंजाम दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा है। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में भी पाक फौज, सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दरियाए सतलज के नजदीक मुजाफाती इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 12 रिलीफ कैंप कायम किए हैं। साहिवाल में 49 देहात मुतासिर हुए जहाँ पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप लगाए हैं। तलम्बा, मियां चन्नू और इकबाल नगर में भी इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हजारों अफराद, मवेशी और गंदम महफूज मुकामात पर मुंतकिल की जा चुकी है। ओकाड़ा के मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। रंगपुर और हेड मोहम्मद वाला समेत मुमकिन मुतासरा इलाकों में भी फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। तहसील कोट अद्दू में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम कर लिए गए हैं। हेड मोहम्मद वाला पर मुमकिन खतरे से बर वक्त बचाव के लिए ब्रीचिंग पॉइंट्स और दीगर हिफाजती इक़दाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को मुआवजे दिए जा रहे हैं। हुकूमती इदारों के साथ साथ गैर सरकारी तंजीमें और रजाकार भी मैदान में मौजूद हैं। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे अदनान शाह की रिपोर्ट। मानसहरा में वफाकी वजीर मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मुतासरीन में वफाकी हुकूमत की जानिब से 20-20 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। उनका कहना था कि मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी बिला इम्तियाज मदद की जाएगी। वफाकी वजीर ने जिले इंतजामिया को हिदायत की कि राब्ता सड़कों और पीने के पानी की स्कीमों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला मानसहरा में अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जिसके लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से सिर्फ 10 करोड़ रुपए देना काफ़ी नहीं, मजीद फंड्स फराहम किए जाएं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हालिया सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से हंगामी इमदादी सामान की तकसीम शुरू कर दी गई है। सबसे ज्यादा मुतासरा अजला बोनेर, स्वात, शांगला, बटग्राम, मनसहरा, सवाबी और दीगर इलाकों में इमदाद फराहम की जा रही है। इस मकसद के लिए किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने 10,000 शेल्टर किट्स और 10,000 फूड पैकेजेस मुख्तस किए हैं। इमदादी सामान की तकसीम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, महकमा रिलीफ बहाली और आबादकारी खैबर पख्तूनख्वा के ताआवुन से की जा रही है। दूसरी जानिब एबट आबाद में हालिया मानसून बारिशों से नदीहारों में तोगयानी के बाइस लोरा नगरी पुल बह गया, जिससे दर्जनों देहात का एबट आबाद और इस्लामाबाद से राब्ता मुनक़ता हो गया। मकीनों और स्कूल के बच्चों को नदी पार करने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी पुल की तामीर का मुतालबा किया है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिश्ता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। मदीने का सफर है और मैं दीदा जब अफसरदा अफसरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा चला एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लरज़ीदा लरज़ीदा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लरज़ीदा लरज़ीदा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है। आपने कहा कि जाओ तुम सब आज़ाद हो, किसी पर कोई गिरफ्त नहीं। फतह मक्का पर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो अल्फाज थे जिन्होंने तारीख का धारा बदल दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार अहमद। फतह मक्का एक ऐसी तारीखी कामयाबी जिसने ताकत के बजाय अमन और तलवार के बजाय हिकमत का पैगाम दिया। फतह मक्का कोई आम जंग नहीं थी जहां खून बहता, तबाही फैलती और शहर उजड़ता। फतह मक्का वो कामयाबी है जिसकी बुनियाद मुआहदा हुदैबिया में रखी गई। ऐसी जंग जीत गए हैं कि जिसमें न तलवार उठी न किसी का कोई नुकसान हुआ, बल्कि कुफार ईमान लाने पर मजबूर हुए और उनकी ज़बान पे भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
मुआहिदा हुदैबिया एक ऐसा मुआहिदा जो बज़ाहिर मुसलमानों की शिकस्त नजर आता था, मगर मुआहिदा हुदैबिया ही अजीम फतह का पेश खैमा साबित हुआ। मुआहिदा हुदैबिया ने ही 10 साल के लिए जंग बंदी की बुनियाद रखी और मुसलमानों को सियासी और अस्करी कुव्वत के तौर पर तस्लीम किया गया। और ये सब कुछ इसलिए कि हिजरत के बाद पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद ही मीसाके मदीना पर रखी गई। मीसाके मदीना कोई मामूली मुआहिदा नहीं था, ये मुआहिदा दुनिया की पहली जदीद आईनी रियासत की बुनियाद थी। एक ऐसी रियासत जिसका हर शहरी कानून की हुक्मरानी का पाबंद था, और यही मजबूत सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो बेस कैंप बना जहां से फतह मक्का जैसी मुहिम को प्लान और एग्जीक्यूट किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसा के मदीना में दरअसल वो तमाम राइट्स को सबको सामने रखा। उसने एक ऐसी फलाही रियासत बनाई थी कि जिसमें सबको पूरा और बराबर और इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए पूरे हकूक उनको वहाँ पे मिले। फतेह मक्का कोई रिवायती जंग नहीं थी, फतेह मक्का एक जियोपॉलिटिकल चेकमेट था। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और 65,000 क्यूसिक्स पे आके पिछले 2 से 3 घंटे से एक स्टडी ट्रेंड इसने मेंटेन किया हुआ है। अब मैं क्विकली आपसे ये बात करूंगा कि ये जो चनाब का अब 5.25 लाख का क्यूसिक्स का कल रात पानी आया है, जिसमें तमाम नाले भी और जो अपर कैचमेंट्स हैं चनाब की, उनमें बारिशों का ये मेन सबब था, और आखिरी जो फिर उनके डैम्स भी अपनी कैपेसिटी अटेन करने के बाद उनके भी फ्लोज इसमें आ रहे हैं। तो इस 5.25 लाख क्यूसिक का अब पंजाब के चनाब रिवर पे और जो नीचे डाउन स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ऑलरेडी सैलाबी सूरत हाल और उन्होंने अपनी इस तारीख का सबसे बड़ा सैलाब देखा, उन पे क्या सूरत हाल रहेगी। इस वक्त ये पानी जो चनाब से रात 5,68,000 क्यूसिक्स गुजरा, ये अपने हेड खानकी से होता हुआ हेड कादराबाद के मुकाम पर इस वक्त हाई राइजिंग ट्रेंड में है और राइजिंग पोजीशन में है। यहाँ पे ही आपको याद होगा कि किस तरीके से हमने 27 और 28 तारीख की रात इसमें राइट बैंक पे एक ब्रीच किया था जब 10,77,000 क्यूसिक्स गुजर रहा था, और वो जो ब्रीच है उसके पेश नज़र मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 50 से 60 देहात अंडर वाटर थे। अभी चीज़ें वहाँ नॉर्मलाइज होना शुरू हुई थी कि कुछ फीट पानी नीचे जा रहा था, लेकिन अब दोबारा ये जो 5.25 लाख क्यूसिक्स का रेला है, ये इस वक्त जब कादराबाद के मुकाम पे पहुँचेगा तो उस जो ऑलरेडी ब्रीचिंग सेक्शन है वहाँ से पानी दोबारा इन देहातों में जाएगा, जो एक इंतज़ामिया के लिए भी और सैलाब मुतासरीन के लिए भी एक चैलेंज से कम नहीं होगा। इसी तरह ये पानी अगले 24 से 36 घंटों में हेड कादराबाद से होता हुआ ये चनियोट ब्रिज और फिर बिलाखिर ये रिवाज ब्रिज जंग में पहुंचेगा। और आपके इल्म में ही है कि ये वो मुकाम है कि जहां पे टाइमली डिसीजन करके हमने बड़ी अर्बन सेंटर्स को बचाया था, और पानी इस वक्त तमाम उस एरिया में जिसको मेनली मसन का वो एरिया कहते हैं जिसमें फैला हुआ है, कई किलोमीटर्स तक वो पानी फैला हुआ है। आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी जंग तशरीफ ले गई। अब इस पानी और इन देहातों की इनंडेशन में मज़ीद परेशानी का सबब ये बनेगा पानी जो चनाब का आ रहा है, और फिर अल्टीमेटली ये वहाँ से होता हुआ हेड त्रिमू पे ये पानी जाएगा। आपके इल्म में ही है कि हेड त्रिमू ने किस तरीके से तकरीबन 5,60,000 क्यूसिक्स के करीब पानी वहाँ से सेफली गुजरा, और ना सिर्फ हेडवर्क्स को पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बचाने में कामयाब हुई, बल्कि वो सेफली डिस्चार्ज से नीचे के इलाकों में भी काफ़ी हद तक नुकसानात से बचाव मुमकिन हुआ। लेकिन अब दोबारा इस सारे रेले से जो ब्रीचिंग सेक्शन के बाहर की आबादी है वो तो इफ़ेक्ट होगी, लेकिन एक दफ़ा फिर हेड त्रिमू के लिए भी पानी के बहाव में एक फिनोमिनल इजाफा होगा। तो ये वो चंद चीज़ें थी जो चनाब के रिलेटेड थी, जो पिछले 24 घंटे में चनाब के में फ्लोज बढ़े। इसी के साथ साथ आपको मैंने जैसे दूसरी वार्निंग की बात की, वो हरीके की के मुकाम पर जो इंडिया में ये कल वार्निंग आई, और इस वक्त गंडा सिंह पे तकरीबन 3,19,000 क्यूसिक्स
एक स्टडी ट्रेंड चल रहा है। और सतलुज में आप देखें कि इस दफ़ा जो हमारे बाकी दरियाओं में भी सुपर फ्लड की सूरत हाल रही, लेकिन सतलुज वो दरिया है कि जो पिछले तकरीबन लगभग 2 माह के करीब अब वक्त हो गया है कि इसमें हाई टू वेरी हाई और अब एक्सेप्शनली हाई फ्लड की सूरत हाल है। और वहाँ DGPDM में इरफान अली काठिया मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे लाहौर में। उन्होंने चनाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। चनाब में गुजरने वाले 5,75,000 क्यूसिक्स रैली के हवाले से वो आगाह कर रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह किया है कि तनाज़े कश्मीर को कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का ख्वाब हरगिज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर एक मुतनाज़ इलाका है जिसके एक बड़े हिस्से पर भारत ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करने और इन्हें अपना नाकाबिल तनसीख हक खुद इरादियत देने के बजाय उनकी जद्दोजहद को ताकत के बल पर दबाने की पॉलिसी पर मुसलसल अमल पैरा है। इससे मकबूजा इलाके में इजहार राय की आज़ादी के हक को मुकम्मल तौर पर सलब कर रखा है। हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत हज़ारों कश्मीरियों को सलाखों के पीछे डाल रखा है। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम पर भारत का मुहासबा करे। वादी कश्मीर को बैरूनी दुनिया से मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता श्रीनगर जम्मू शाहरा की मुसलसल बंदिश की वजह से वादी में लोगों को अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत का सामना है। ये शाहरा हर साल औसतन 45 दिन बंद रहती है। रवा बरस अब तक शाहरा लैंडस्लाइडिंग की वजह से मजमूई तौर पर 21 दिन तक बंद रही है। मकबूजा वादी के लोगों का कहना है कि शाहरा बंद रहने से उन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो तिजारत और इंसानी राब्तों के लिए श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहरा की बहाली के लिए भारत पर दबाव डाले। मकबूजा इलाके में 26 अगस्त से जारी शदीद बारिशों से हज़ारों अफराद मुतासर हो चुके हैं। लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने के सबब दर्जनों अफराद की जानें चली गईं। मवासलाती ब्लैकआउट की वजह से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में रुकावटों का सामना है। स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं जबकि पठानकोट और जम्मू के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। कश्मीरी सियासी रहनुमाओं ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के दौरान ब्रीफिंग के वक्त मकबूजा इलाके के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को नज़रअंदाज किए जाने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा है कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि वज़ीर आला को जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो कहीं नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को BJP रहनुमाओं के पीछे पीछे चलने की बजाय इज्जत नफ्स का ख्याल करना चाहिए। अमित शाह के दौरे के हवाले से तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं जिनमें वज़ीर आला को अमित शाह और दीगर हुक्काम के पीछे खड़े देखा जा सकता है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट कहती है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में कहीं कहीं जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत दादू और नौकुंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। क्रिकेट की बात करते हैं। 3 मुल्की T20 सीरीज के 5वें मैच में कल पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। 3-3 मैच खेलने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम अपने दोनों मैच हार गई। 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को पहले T20 मैच में 4 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। हरारे में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन स्कोर किए। ओपनर ब्रायन बार्नेट ने 81 रन की इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा ने 28 रन स्कोर किए। श्रीलंका के दुश्मंता चमेरा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका ने 176 रन का हदफ 19.1 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर पातुम निसांका ने सेंचुरी बनाई और 55 रन बनाकर कैच आउट हुए। कोसल मैंडिस ने 38 और कमिंदू मैंडिस ने नॉट आउट 41 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज का दूसरा मैच हफ्ते को हरारे में ही खेला जाएगा। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। PTV न्यूज पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।